In last lecture, we were discussing about amount of charge on a particular ion. There are two things generally we think about normal, this relative charge and absolute charge. Value of E, very elementary things we are doing, just the introduction. Value of E is 1.602 10 raised to power minus 19 coulomb or 4.8 10 raised to power minus 10 ESU, that is in CGS unit. E key value approximately we can take 1.6 10 to power minus 19 coulomb. Now a small analysis about this is coulomb SI unit of charge, quantity of electricity, and this is ESU, CGS unit of charge or quantity of electricity. Small question I would like to ask. In one batch we discussed already while taking physical classroom lecture कि भाई coulomb or ESU में which is bigger unit of charge. If I say 1 coulomb of charge, if I say 1 ESU is 1 ESU charge, which is greater amount of charge? Coulomb. 1 coulomb. देखो simple way of thinking, बड़ी यूनिट में वैल्यू छोटी एंड छोटी यूनिट में वैल्यू बड़ी, सीधा एक ही नारा है, बड़ी यूनिट में वैल्यू छोटी एंड छोटी यूनिट में वैल्यू बड़ी. जैसे किलोमीटर एंड मीटर दोनों बहुत ही सिंपल एग्जांपल, किलोमीटर और मीटर बोथ डिस्टेंस मेजरमेंट की यूनिट्स हैं. किलोमीटर इज बिगर यूनिट एंड मीटर इज स्मॉलर यूनिट, ऑल ऑफ अस नो इट. जब मीटर में सेम वैल्यू देख रहे हैं डिस्टेंस की तो 1000 है, बड़ी वैल्यू है, और किलोमीटर इफ यूनिट इज बिगर then value is smaller. 1 and 1000 में which is smaller value 1. तो बड़ी यूनिट में छोटी वैल्यू एंड छोटी यूनिट में बड़ी वैल्यू. तो दोस्तों सिर्फ ऑर्डर देखें आप, 10 power minus 19 coulomb and 10 power minus 10, which is bigger value? 10 raised to power minus 10 is bigger value comparatively. So we can say 1 coulomb 4.8 10 raised to power minus 10 ESU and 1.6 10 raised to power minus 90. On simple calculation, 16 3s are 48, 3 multiplied by 10 to power 9 ESU. 3 billion, 10 raised to power 9 means billion. 3 billion ESU के बराबर 1 coulomb है. Can you imagine? In last lecture we considered कि how mass of electron is rendered to be negligible in comparison of mass of proton and neutron, or mass of nucleus which has protons and neutrons taken together. एक ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसमें सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते. बाकी सब न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाइड्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं. दैट टेकन टुगेदर नोन एज न्यूक्लियॉन्स. दिस इज 3 billion. That means ESU is very, 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 very smaller unit in comparison of coulomb, undoubtedly. 1 coulomb is 3 multiplied by 10 to the power 9 ESU. Relative charge और absolute charge की बातें हम लोग कर रहे थे. If I say PO4 minus 3, H3PO4 is known as phosphoric acid or orthophosphoric acid. PO4 minus 3 is phosphate or orthophosphate. तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. It simply means इलेक्ट्रॉन्स इस आयन में ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से. इतना तो हम बहुत बेसिकली एलिमेंट्री चीज वैसे ही सोच सकते हैं. इट इज ए फॉर एप्पल. नेगेटिवली चार्ज कोई भी आयन है यानी कि एसिडिक रेडिकल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट आयन must be greater than number of protons. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है. इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, नो डाउट अबाउट इट, तभी नेगेटिवली चार्ज है. और किसी के ऊपर भी चार्ज अगर आता है तो इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से आता है. फॉर्मल चार्ज एक और चीज होती है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. वो लॉस या गेन की बजाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आ सकता है, बट वी विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर टर्म लेटर ऑन. फॉस्फेट और ऑर्थोफॉस्फेट आयन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा. इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने प्रोटॉन होंगे उनसे 3 ज्यादा होंगे.
number of electron is equal to number of proton plus 3 in phosphate ion and orthophosphate ion. -3 is relative charge. If I say what is charge on one phosphate ion in coulombs or in ESU, that is absolute charge. तो -3 है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या चार्ज होगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई ई. -3 इज रिलेटिव चार्ज दैट जनरली वी टॉक अबाउट एंड -3 इज एब्सोल्यूट चार्ज. अगर इस Q की वैल्यू चार्ज ऑन फॉस्फेट आयन अगर कूलम में चाहते हो तो E की वैल्यू प्यार से आप 1.6 × 10⁻19 कूलम पुट कर दीजिए एंड E की वैल्यू ESU CGS यूनिट में if you wish to have then you can put the value E equal to 4.8 × 10 ESU. ESU stands for electrostatic unit. AMU मास की यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट. 1 AMU we defined in the first lecture, 1/12 of mass of one atom of carbon 12. 1 AMU बोलो या 1 U बोलो या 1 DA बोलो, all three are one and same thing, equal to each other. Never ever get confused. AMU stands for atomic mass unit, 1/12 of mass of one atom of carbon 12. U मतलब unified mass and DA मतलब Dalton. 1 Dalton or 1 unified mass or 1 AMU, all three are equal to each other. Just keep in mind small information that might be used later on. Charge is -3e, number of electron is equal to number of proton plus 3. अब देखो कुछ आयन हमें ध्यान रखने हैं. तो एब्सोल्यूट चार्ज अगर मैं कूलम में पूछूं, एक चीज हमने और देखी थी, माइकल फेराडे टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. 1 फेराडे, इसको हम डिनोट 1F से भी कर देते हैं, लेकिन फिजिक्स में फेराड भी एक यूनिट होती है, वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कैपेसिटेंस में पढ़ते हैं. लेकिन फेराडे इज क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और क्वांटिटी ऑफ चार्ज और अमाउंट ऑफ चार्ज. 1 फेराडे इज 96500 कूलम approximately, and 1 फेराडे is equal to Avogadro number multiplied by charge on electron. Of course E की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, plus E charge on proton and minus E charge on electron, that we have already seen. अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द चार्ज इन फेराडे, और फिर मैं आपको एक IIT-JEE का पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन दूंगा, दैट इज ऑन द सेम लाइंस, द सिंपलर वन. फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज on, let us do one basic question. 3 moles of sodium ion. Second one, 0.2 moles of magnesium ion. Third one, फेराडे में आंसर देना है. इन फेराडे 1.5 moles or millimoles, you can change it, of aluminium ions. देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज या Na मल्टीप्लाइड बाई E की वैल्यू 1 फेराडे होती है, एंड यू गाइज नीड टू आंसर इट इन टर्म्स ऑफ फेराडे, which is sometimes given in terms of options. फेराडे की टर्म्स में भी कूलम रिलेटिव चार्ज तो हम सिर्फ देखने में देखते हैं. 3 moles of Na positive ion, 3 moles 3 of Faraday. 3 Faraday. 3 moles of Na positive ion. तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक सोडियम आयन के ऊपर चार्ज है 1 प्लस E है, तो एक सोडियम आयन के ऊपर चार्ज हो गया +1E. 1 मोल ऑफ सोडियम आयन के ऊपर चार्ज हो गया मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल में कितने आयन होंगे वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज नथिंग बट एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयंस. एंड 3 मोल में कितने आयंस होंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई E, तो इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई E, व्हिच इज सिंपली 3 फेराडे. तो इसका आंसर प्यार से लिख सकते हैं 3 फेराडे. 0.2 मोल्स ऑफ
Mg+2 आयन, 0.2 मोल्स ऑफ Mg+2 आयन के ऊपर 0.4 चार्ज F. बताओ सबसे पहले। +2 is relative charge, +2e is absolute charge on 1 magnesium ion। ये एक मैग्नीशियम आयन का चार्ज है, तो 1 मोल ऑफ आयन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल में कितने आयन्स होते हैं, 1 मोल में इतने होते हैं, तो आपके पास 0.2 मोल है। तो दिस इज चार्ज 0.4 मल्टीप्लाइड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय E, व्हिच इज नथिंग बट 0.4 फैराडे। 0.4 फैराडे। Total charge on 1.5 millimoles. 1.5 millimoles is nothing but, in turn, it can be written as 1.5 × 10⁻³ moles. Yep. Charge is, relative charge on one aluminum ion is +3. Absolute charge on one aluminum ion is +3 multiplied by E. E को कूलम, ES ह्यूमन, चाहे उस यूनिट में आप लोग यूज कर सकते हैं। We have discussed it earlier. +3E। ये एक एल्यूमिनियम आयन के ऊपर चार्ज है। व्हाट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ आयंस मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। व्हाट इज चार्ज ऑन 1.5 10⁻³ moles of ions? This is relative charge on one ion. This is absolute charge on one aluminum ion. This is absolute charge on 1 mole of aluminum ion. This is absolute charge on 1.5 10⁻³ moles of aluminum ion, which is actually asked. तो 4.5 10⁻³ और Na मल्टीप्लाइड बाय E को आप प्यार से लिख सकते हो फैराडे, बिकॉज आंसर इज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ फैराडे। यू गाइस अंडरस्टूड इट? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से करना। कुछ आयंस, कुछ एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के फॉर्मूलाज अगर आपको ध्यान है तो वेल एंड गुड, अगर ध्यान नहीं है तो आई विल बी टेलिंग यू, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर सम एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स। तब से हमें जरूरत पड़ती है और हम यूज करते रहते हैं। एनीवेज, कुछ एसिडिक रेडिकल मैं बता देता हूं। देखो, ये है बेसिक रेडिकल। पहले NO पॉजिटिव आयन, NO2 पॉजिटिव आयन। इसको तो हम नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हो गया नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम। और आगे हम 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नाइट्रोसिलियम आयन के नाम से भी इसका IUPAC नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है। राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। दिस इज नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। दोस्तों, ये अमोनिया होता है आपका। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अगर एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर इसका देखें, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग के ऊपर जाए तो? नाइट्रोजन के पास हीलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन के बाद 2s2 2p3, यानी कि वैलेंस सेल में, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए आपके NS2 के, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, NP3 का एक इलेक्ट्रॉन हो गया। राइट, 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, बचे 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के। S और P ब्लॉक के एलिमेंट सिर्फ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही यूज करते हैं व्हाइल टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग। जब किसी कंपाउंड की फॉर्म में जाते हैं तो जस्ट रिमेंबर, S and P ब्लॉक के एलिमेंट टेकन टुगेदर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एक चीज का ध्यान रखें, वेयर यू विल कमिट मिस्टेक। S और P ब्लॉक के एलिमेंट, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 S ब्लॉक हो गया। ग्रुप नंबर 13 14 15 बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 हेलोजन फैमिली एंड ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस। ये P ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। S और P ब्लॉक के सारे एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन नोबल गैस ग्रुप 18 को छोड़कर। ग्रुप 18 इज नॉट पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट, हालांकि P ब्लॉक का पार्ट जरूर है।
तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछते हैं, which of following is representative element? So guys and girls, you must remember noble gases are not part of representative elements. All S and P block elements except noble gases are known as representative elements. Representative element include पी ब्लॉक के इंक्लूडिंग नोबल गैसेस की खासियत होती है बॉन्डिंग करते टाइम, वो सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड, किसी भी तरह का बॉन्ड बनाने में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही इस्तेमाल करते हैं। तो नाइट्रोजन पी ब्लॉक का एलिमेंट है NH2 NP3, 3 वैलेंस शेल के इसके इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है आपके, वो यूज हो गए मेकिंग 3 कोवलेंट बॉन्ड विद 3 हाइड्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया का IUPAC नेम एजेन होता है। यू विल रेयरली एनकाउंटर विद दिस नेम, बट जहां पे एजो और एजा आ जाए वहां पे नाइट्रोजन, जहां पे एजो और एजा आ जाए वहां पर नाइट्रोजन यूज करते हैं हम लोग, खासकर IUPAC नेमिंग में ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 यूज हो गए हैं बॉन्डिंग में, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर में और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। ये अमोनिया है। अब अमोनिया को अगर H पॉजिटिव आयन मिल जाए, जिसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, हमने क्लास में डिस्कस किया था इसको प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। पूरी केमिस्ट्री में सर्वोत्तम दर्जे का भिखारी है H पॉजिटिव, सर्वोत्तम दर्जे का भिखारी है H पॉजिटिव। ये किसी से रिश्ता करने चलता है तो इसकी एकदम क्लियर कट ओपिनियन होता है, भाई अगर आप मेरे से रिश्ता बनाना चाहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू मेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो माय सिंपल प्रपोजल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दोनों इलेक्ट्रॉन आपको देने पड़ेंगे इफ यू वांट टू मेक बॉन्ड में। यानी कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, आप लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में अगर इसके पास खाली ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देता है। दान करने वाले को डोनर एटम बोलते हैं और इसको एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। एक्सेप्टर एटम बोलता है अल्लाह के नाम पे दे दो, दिस इज एक्सेप्टर, दिस इज एक्सेप्टर। तो H पॉजिटिव इज एक्सेप्टर। मैं H पॉजिटिव को बोलूं H पॉजिटिव, H क्या होता है 1H1 में प्रोटियम की ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, ना कि हैवी हाइड्रोजन एंड सुपर हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन इज 1H2 एंड सुपर हैवी हाइड्रोजन इज 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हमने एवरेज एटॉमिक मास में देखा था कि नेचर की गोद में, नेचर में प्रोटियम का बहुमत है, इसलिए एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू हमारी ऑन डूइंग द कैलकुलेशन 1 पॉइंट समथिंग आई थी। तो एवरेज वैल्यू जिसका बहुमत होता है उसके पास खिंचा चला आता है। 1H3 ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव बट प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम, इसको हैवी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन वाला वाटर है तो इसको ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का ऑर्डिनरी वाटर बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन वाला वाटर है तो इसको हैवी वाटर बोलते हैं, और सुपर हैवी हाइड्रोजन वाला वाटर है तो सुपर हैवी वाटर बोलते हैं इसको। तो तीनों को हैवी वाटर आपका न्यूक्लियर रिएक्टेंट में कूलेंट की फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। जस्ट जी के, ये बस जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, यू मे एनकाउंटर विद, hopefully you keep on writing the useful information that might be used later on, right now not necessary in this chapter. Guys and girls, this is donor atom, acceptor atom। मैं हाइड्रोजन प्रोटियम की सिचुएशन की एनालिसिस करता हूं थोड़ी। इसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, चूंकि ये एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हो गए भाई साहब? 1 - 1 0, आई रोट इट रॉन्गली। प्रोटॉन इज 1। ये अगर हम बात करें तो यहां पर प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन भी 2 - 1 1 है, और इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 है। यहां पर भी प्रोटॉन आपका 1 है एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन 3 - 1 2 हो गए, और इलेक्ट्रॉन 1 होगा।
तीनों में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तभी न्यूट्रल है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम किसी का भी एटम, हाइड्रोजन ऑर्डिनरी, हैवी हाइड्रोजन एंड सुपर हैवी हाइड्रोजन। ओके, जब किसी एटम पे, मॉलिक्यूल पे चार्ज आता है तो न्यूक्लियाई में जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनकी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दे रिमेन सेम बिकॉज चार्ज डज अपीयर ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एब्सोल्यूट चार्ज डज अपीयर ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से आता है, न्यूक्लियॉन्स के आने जाने से नहीं आता। मैंने क्लास में डिस्कस किया था, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो तो इन द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट थिंकिंग science is observed, science is invented, more observed and less invented, whether talk about biology, whether we talk about physics, whether talk about chemistry. This is science and mathematics is language of science. सभी ज्यादातर observed है आपकी, invented भी है but कम है. That one question I raised in the very first lecture, because you must develop a basic perception while studying science, how it is developed over the years by the human mind. देखो यहां पर अब एक टर्म और यूज होगा, प्रोटॉन से, प्रोटॉन का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो बन गया, प्रोटियम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो प्रोटॉन होगा, ड्यूटेरियम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ड्यूट्रॉन हो गया, ट्रीटियम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, ट्रीट्रॉन हो गया। आपको बोलेंगे ड्यूट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, तो यू गाइस मस्ट नो ड्यूट्रॉन क्या होता है, क्या चार्ज होता है, क्या मास होता है उसका। ड्यूटेरियम का मास अप्रोक्सीमेटली 2 mu, ड्यूट्रॉन का मास भी 2 mu, क्योंकि किसी एटम का जो चार्ज होता है उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वही चार्ज लेके चलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से मास में चेंज नेग्लिजिबल होता है। एज सिंपल एज दैट, वी डिस्कस्ड इट। ट्रिटियम का मास 3 mu है, ट्रिटोन का मास भी 3 mu है, तो इसका मास अगर 1 mu को m बोल दें तो इसका मास 2m है, 2 mu, और इसका मास 3m है, लेकिन चार्ज तीनों के ऊपर बराबर है, एब्सोल्यूट चार्ज प्लस 1e, एब्सोल्यूट चार्ज प्लस 1e, एब्सोल्यूट चार्ज प्लस 1e। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड ट्रिटॉन, प्रोटॉन के प्रोटियम के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, ड्यूटेरियम के कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूट्रॉन एंड ट्रिटियम के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिट्रॉन। तो ये प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्रिट्रॉन क्या होते हैं, यू मस्ट नो इट। अच्छा, मैं H पॉजिटिव की बात कर रहा था, मैंने बोला H पॉजिटिव सर्वोत्तम दर्जे का भिखारी है। मैं प्रोटियम की एनालिसिस करता हूं, उसी से प्रोटॉन बना है। देखो इसमें क्या था, एक प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन है ही नहीं, एकमात्र वो न्यूक्लियस जिसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, वो दोस्तों सिर्फ प्रोटियम का न्यूक्लियस है। बाकी सब न्यूक्लियाई में, दुनिया भर के जितने भी न्यूक्लियाई, जितने भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप आप देखोगे, सभी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ कोएग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। अच्छा, कभी आपने एक जीके वाली चीज, कभी आपने सोचा कि न्यूक्लियस में जैसे गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज 79, it simply means inside nucleus of gold atom there are 79 protons। प्रोटॉन सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, यानी कि हद से ज्यादा छोटा साइज होता है। इट इज डेफिनेटली नॉट विजिबल बाय योर नेक्ड आइज। तो बच्चों, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, इतने छोटे से साइज में इतने सारे प्रोटॉन। यूरेनियम के न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 92। उसके अलावा न्यूट्रॉन और होते हैं। आई एम जस्ट रेजिंग ए सिंपल क्वेश्चन, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, अगर बड़े एटॉमिक नंबर वाला कोई एटम है, उसका कोई एलिमेंट का कोई आइसोटोप है, तो उसमें बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, जैसे गोल्ड में 79 प्रोटॉन्स हो गए। सारे 79 प्रोटॉन्स एक दूसरे को आई हेट यू बोलते होंगे, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होता है। ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड इट, दिस इज लॉ ऑफ नेचर। सारे प्रोटॉन एक दूसरे से रिपेल करते हैं, सारे प्रोटॉन एक दूसरे से रिपेल करते हैं। तो भाई साहब, ये न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन कैसे एग्जिस्ट कर लेते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं इतनी लड़ाइयों के बाद? न्यूक्लियर फोर्सेस। एब्सोल्युटली करेक्ट। न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। 3 तरह के फोर्सेस, बहुत और भी तरह के फोर्सेस की आप लोग बात करते हो, जस्ट एक
एलिमेंट्री डिस्कशन कर रहा हूं, बिगनिंग में ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, एक हम ग्रेवी मतलब मास, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू मास, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। तीनों की स्ट्रेंथ की बात करूं तो इन जनरल न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स उससे स्ट्रांग होते हैं और काफी स्ट्रांग होते हैं उससे, तो न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे स्ट्रांगर होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से भी 50 to 60 टाइम स्ट्रांगर होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस की अपनी एक कंडीशन है कि मैं बहुत दमदार हूं, न्यूक्लियर फोर्स बोलता है, तो मेरी कंडीशन भी है, एज सिंपल एज दैट, कि मैं तभी लगूंगा, तभी इफेक्टिव होऊंगा तो बहुत दमदार इफेक्टिव होऊंगा जब मेरे न्यूक्लियॉन्स जिनका मैं फोर्सेस हूं वो विद इन न्यूक्लियर रेंज होंगे। और विद इन न्यूक्लियर रेंज मतलब 10⁻⁻13 मीटर से कम डिस्टेंस पे होंगे। तो न्यूक्लियर फोर्सेस तभी लगते हैं जब न्यूक्लियस बहुत पास होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁴ मीटर 15 मीटर के ऑर्डर का होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन, ये चार्ज प्रोटॉन प्रोटॉन भी न्यूक्लियर अट्रैक्टिव, ये हरदम अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये हरदम अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। इनको चार्ज वार से कोई लेना देना नहीं है, इनको चार्ज से लेना देना है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। ये रिपल्सिव भी हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, सब लोग जानते हैं। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्सेस इन कंपैरिजन ऑफ वीकर, relatively weaker coulombic forces, nucleons can be together but within the nuclear range। और वो कंडीशन है न्यूक्लियर फोर्सेस की, ये ऑब्जर्व डेटा है। तो 10⁻⁻13 मीटर से कम न्यूक्लियस का साइज इसीलिए होता है क्योंकि ये न्यूक्लियर रेंज है फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस टू एक्ट। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, बट अब जस्ट मैंने एक क्वेश्चन दिया तो उसका मैंने आपको डिस्कशन किया। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जल्दी से। हाँ, मैं बोलूंगा फॉस्फेट आयन क्या है। चलो मैं पहले क्वेश्चन देता हूं, फाइंड, जल्दी से क्वेश्चन करना ऑल ऑफ यू, फाइंड टोटल चार्ज, किसमें बताना है, इन टर्म्स ऑफ फैराडे ऑन फर्स्ट। कुछ बेसिक रेडिकल की हमने बात की थी पहले वाले क्वेश्चन में, अब एसिडिक रेडिकल की बात की है। इन्हीं क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन दूंगा, जेई का पूछा हुआ, जेई एडवांस का पूछा हुआ, एक बहुत छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था कभी बड़े से क्वेश्चन में, but you can do it right now, that's I am throwing that question right here। Find total charge in Faraday on following ions। First, 3 moles of magnet ion, second is 5 millimoles of permanganate ion। ये सब एसिडिक रेडिकल में ले रहा हूं अभी एग्जांपल में। एनायन को एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और बेसिक रेडिकल कैटायन होते हैं, क्यों होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। 5 millimoles of permanganate ion,
10 micromoles of डाइक्रोमेट, बहुत ही जो फेमस कॉमन आयन है जो आप पढ़ भी चुके हो. आई एम टेकिंग दिस आयन इनटू कंसंट्रेशन व्हाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चंस. 20 moles of chromate ion and fifth 10 moles of azide ion, and sixth is 10 moles of nitride ion. अब देखो ये दोनों एक साथ इसलिए लिखे so that you can compare them. Comparison is the best way to keep in mind. परमैग्नेट आयन एंड मैग्नेट आयन मैं डिस्कस करता हूं. देखो आप सब लोग जानते हैं ऑक्सी एसिड स्मॉल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग पहले से कुछ आइडिया है भी इसका. आई होप सो. ऑक्सी एसिड्स मतलब जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हो. तो ऑक्सी एसिड में जैसे HCN है तो ऑक्सी एसिड है क्या, HCl है कि ऑक्सी एसिड है? बिल्कुल नहीं. जिनमें ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सी एसिड कैसे हो सकते हैं? और ऑक्सी एसिड्स में जो एसिडिक हाइड्रोजन होती है वो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई होती है. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की मैं बात करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड में दो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन से जुड़ी हुई होती है, तो ये एक ऑक्सी एसिड है. ऑक्सी एसिड के जो सफिक्स होते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑक्सी एसिड के, वो दो सफिक्स मिलते हैं. एक एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्लोरिक एसिड, आयोडिक एसिड, मैग्निक एसिड, परमैग्नेट एसिड, क्रोमिक एसिड, डाइक्रोमिक एसिड, ब्ला 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 ब्ला. एक एसिड या उनका सफिक्स होता है एस. ऑक्सी एसिड्स का जो सफिक्स होता है क्या तो इक होता है या एस होता है एच पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अगर इक एसिड से अगर हम सोल्ट बनाएं या ऑक्सो एनायन बनाएं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्ट होता है सल्फेट, या सल्फ्यूरिक एसिड का, ये तो एसिड हो गया ऑक्सी एसिड, ये हो गया सल्फेट. तो यहां पे एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे 8 है सल्फेट. सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट. तो इक एसिड इसका सफिक्स इक है तो इसका सफिक्स 8 है. ये हो गया ऑक्सी एसिड, ये हो गया ऑक्सी एसिड, और ये हो गया ऑक्सो एनायन. ऑक्सी एसिड का एनायन ऑक्सी एनायन या ऑक्सो एनायन, इसको ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड दोनों बोलते हैं. ऑक्सो एनायन या फिर हम बोलेंगे सल्फेट सोल्ट. सोल्ट में सल्फेट की फॉर्म में रहता है सल्फ्यूरिक एसिड अपने एचायन लूज करके. तो दोस्तों अगर इक एसिड का ऑक्सो एनायन बनता है तो उसका सफिक्स 8 होता है. वी गाइस नो इट. इक एसिड का जो सफिक्स होता है वो 8 होता है. इक हटाकर 8 लगा दो. अस एसिड का जो सफिक्स होता है वो आइट होता है. मैं IDE नहीं बोल रहा हूं. क्लोराइड अलग चीज है, क्लोराइड अलग चीज है. सल्फाइड अलग चीज है, सल्फाइड अलग एसिडिक रेडिकल है, सल्फाइड अलग एसिडिक रेडिकल है. तो ऑक्सी एसिड के अगर हम बात करें तो ये ऑक्सो एनायन है या ऑक्सी एनायन है या सोल्ट की फॉर्म में इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये होते हैं. ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आप लोग देखते हो. तो जस्ट कीप दिस इंफॉर्मेशन इन योर माइंड. ऑक्सी एसिड के सफिक्स दो होते हैं दोस्तों, इक एसिड एंड एस एसिड. इक एंड एस सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस, नाइट्रिक एंड नाइट्रस, क्लोरिक एंड क्लोरक, फॉस्फोरिक एंड फॉस्फोरस, लाइक दैट. इक एंड एस. जिन ऑक्सी एसिड का सफिक्स इक होगा उनके ऑक्सो एनायन या सोल्ट में
ऑक्सो एनायन का नाम का सफिक्स होगा 8 और एस एसिड की कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्सो एनायन होगा उनका सफिक्स होगा 8, उनका सफिक्स होगा 8। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ इक एसिड और मैं बात करूं एस एसिड, इक एसिड एंड एस एसिड, जैसे H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 जो बहुत फेमस है मैं बता रहा हूं, यू हैव ऑलरेडी एनकाउंटर्ड विद नाइट्रिक एसिड, ऑक्सी एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है लेकिन ये ऑक्सी एसिड नहीं है, तो दिस इज नॉट फॉर दिस पोजीशन। नाइट्रिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर हम बात करें तो ये क्लोरिक एसिड हो गया, ये हो गया ब्रोमिक एसिड ब्रोमीन लेतो, और ये हो गया आयोडिक एसिड आयोडीन लेतो। अस एसिड H2SO3, H2SO4 is ec acid, sulfuric acid, H2 is sulfurous acid, HNO3 is nitric acid, HNO2 is nitrous acid, H3PO4 is phosphoric acid, H3PO3 is phosphorus या orthophosphorus acid, इसका नाम phosphoric acid या orthophosphoric acid, इसका नाम phosphorus acid या orthophosphorus acid। एक और बताऊंगा इंटरेस्टिंग नेम, वो जैसे पूछा जाता है बच्चे गलती कर देते हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी लवली। H3PO3, H3PO2, जो आप नाम जानते हो पहले लिखता हूं मैं, इसका नाम आप पहले से जानते हो फोस्फोरिक एसिड, नो डाउट अबाउट इट। इसका नाम आप जानते हो फोस्फोरस एसिड, ROUS, स्पेलिंग लिख लेना। इसका नाम है हाइपोफोस्फोरस एसिड, फोस्फोरस एसिड से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे, हाइपो मतलब कम होना, हाइपोफोस्फोरस एसिड। इसका नाम फोस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड दोनों देखोगे, इसका नाम फोस्फोरस एसिड या ऑर्थोफोस्फोरस एसिड दोनों देखोगे। ये नाम तो आप कॉमनली जानते हो, लेकिन इसका नाम एक और है फोस्फोनिक एसिड, और इसका नाम एक और है फोस्फेनिक एसिड। थोड़ी सी स्पेलिंग में फर्क है, INO, फोस्फोनिक एसिड एंड फोस्फेनिक एसिड। Phosphonic acid and phosphonic acid, these are very rare names, जब भी आते हैं तो स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। So dear students, please note down the special names which might be useful while doing the questions in next years, 2 years of your JEE and NEET preparation। ये हो गया फोस्फोरिक एसिड, ये फोस्फोरस एसिड, ये क्लोरिक एसिड और एक ऑक्सीजन कम कर दो, ये क्लोरस एसिड, ये ब्रोमिक एसिड और ये ब्रोमस एसिड, ये आयोडिक एसिड और ये आयोडस एसिड। जरा देखिए, आई होप आई कैन रब दिस। इसको मैं रब कर देता हूं फॉर स्पेस अवेलेबिलिटी। देखो, ये जो हमने रूल पढ़ा कि ऑक्सी एसिड के सफिक्स दो होते हैं, इकनेस, बेस और बेस, और सफिक्स नहीं मिलते हैं। मैं ऑक्सी एसिड की बात कर रहा हूं दोस्तों। इकनेस, जब इक एसिड होते हैं तो उसके ऑक्सो एनायन यानी कि सोल्ट, और जो अस एसिड होते हैं तो उनके ऑक्सो एनायन और सोल्ट का सफिक्स भी फिक्स होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फेट हो गया, लिखते रहे, मैं नहीं लिख रहा, सल्फेट। ये नाइट्रिक एसिड है, तो ये एक एच फायर कर दिया तो नाइट्रेट -1 चार्ज आ जाएगा, H के ऊपर +1 गया। ये फॉस्फोरिक एसिड, तो इसको फॉस्फेट बोलेंगे, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड तो ऑर्थोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं बिंदास। ये क्लोरिक एसिड, तो ये हो गया क्लोरेट। ये ब्रोमिक एसिड, तो ये हो गया ब्रोमेट। ये आयोडिक एसिड, तो ये हो गया आयोडेट। तो दिस इज, कीप राइटिंग गाइस। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट, क्लोरिक एसिड, क्लोरेट, ब्रोमिक एसिड, ब्रोमेट, आयोडिक एसिड,
8. So what we understood? ऑक्सी एसिड का सफिक्स अगर इक होता है आईयूपीएसी नेमिंग में, तो उसके ऑक्सो एनाइन या सोल्ट का सफिक्स 8 होता है। 8। ये आइट है। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, मैं आइट सफिक्स नहीं बोल रहा, आइट बोल रहा हूं। ये सल्फ्यूरस एसिड, तो ये हो गया SO3-2 सल्फाइड। ये नाइट्रस एसिड, एक एचाइन है, फायर कर दो, नाइट्राइट। फॉस्फोरस एसिड, एक्चुअली इसमें तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते हैं, इनफैक्ट 2 ही होते हैं। 2 HPO3-1, ये हो जाएगा, देखो एक बार, H3PO4 H2PO4-1, एक एचाइन फायर हो गया, तो 2 एचाइन फायर हो गए तो -2 आ जाएगा, और तीनों एचाइन फायर हो गए, सारे एसिडिक हाइड्रोजन चले गए तो -3 आ जाएगा। ये तो एसिड है, ये इसके ऑक्सो एनायन है, इसका नाम है फॉस्फेट। ध्यान से सुनना, फॉस्फेट, इसका एक हाइड्रोजन आ गया तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन फॉस्फेट। है तो फॉस्फेट ही, इसमें 2 हाइड्रोजन आ गए तो इसको बोलेंगे डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। यू गाइस अंडरस्टैंड इट? डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। और ये तो सिंपल फॉस्फेट या ऑर्थोफॉस्फेट हो गया, सिंपल। तो ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड, तो ये हो गया हाइड्रोजन फॉस्फाइड। क्या हो गया? -2 आएगा, 2 हाइड्रोजन गए ना, तो हाइड्रोजन फॉस्फाइड। ये क्लोरस एसिड, एक एचाइन चला गया, क्लोराइड। ये ब्रोमस एसिड, BrO2-1, ब्रोमाइड, IT। आयोडस एसिड, IO2-1, आयोडाइड। यू पीपल अंडरस्टूड इट? अब जो जो मैंने नाम लिए थे वो मैं बताता हूं। ये होता है परमैग्निक एसिड और ये होता है मैग्निक एसिड। ये होता है परमैग्निक एसिड, ये है आपका मैग्निक एसिड जो हमने क्वेश्चन में यूज किए हैं। ये होता है H2Cr2O7, 2 क्रोमियम है, ये है डाइक्रोमिक एसिड। और अगर एक क्रोमियम है H2CrO4, जस्ट लाइक H2SO4, इसका फॉर्मूला है क्वाइट सिमिलर, तो ये हो जाएगा क्रोमिक एसिड। कीप राइटिंग। इसको हम लोग बोलेंगे N3-1 और N-3, एक के ऊपर चार्ज -1। इसको हम बोलते हैं एजाइड और इसको हम बोलते हैं नाइट्राइड। ये आईडीई है। आईडीई कब लगते हैं सफिक्स? वो ऑक्सी एसिड की कहानी नहीं है, वो ऑक्सी एसिड के अलावा दूसरे एसिड होते हैं, उनकी कहानी होती है, वो भी मैं बताऊंगा आईडीई कब लगता है। परमैग्निक एसिड, एक एचाइन फायर कर दिया तो MnO4-1 होता है परमैग्निक एसिड का ऑक्सो एनायन, परमैग्नेट। H2MnO4 से 2 एचाइन फायर कर दिए मैग्निक एसिड, तो ये हो गया मैग्नेट। डाइक्रोमिक एसिड में 2 एचाइन फायर कर दिए तो डाइक्रोमेट। क्रोमिक एसिड के 2 एचाइन फायर कर दिए, क्रोमेट। ये NH3 को अगर हम एसिड लें, आप बोलोगे सर NH3 एसिड नहीं होता। अगर आपने एसिड बेस की सारी डेफिनेशन यूज की है तो आप बोलोगे NH3 एसिड भी हो सकता है। मीथेन भी एसिड हो सकता है अगर हम ब्रोंस्टेड एसिड, एक ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट होता है, उसकी डेफिनेशन के अनुसार देखें। आज तक पता आप क्या सोचते आ रहे हो?
वाटर के रिस्पेक्ट में जो ज्यादा एसिडिक है उनको एसिड बोलते आ रहे हो, और वाटर के रिस्पेक्ट में जो कम एसिडिक है या वाटर से ज्यादा बेसिक है उसको आप बेस बोलते आ रहे हो। लेकिन कहानी एसिड बेस की यहां तक नहीं है। जैसा आप लोगों ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एसिड बेस नहीं पढ़ी है, तो जनरली इतनी है। हम लोग सिंपल बोर्ड की तैयारी करते हैं, इतनी करते हैं 9-10 तक। तो ये हो गया क्रोमिक एसिड, ये हो गया क्रोमेट। अगर मैं, एक होता है एजोइक एसिड, N3H इज एजोइक एसिड। ये कोई ऑक्सी एसिड नहीं है पर इसमें भी इक है, तो इसमें इक का 8 वाला रूल नहीं चलेगा, वो ऑक्सी एसिड का रूल था। एजोइक एसिड, और ये आपका अमोनिया है, एजेन है, एजेन। तो इसके 3 हाइड्रोजन फायर कर दूं तो एजेन से ये अमोनिया है, अमोनिया से नाइट्राइड बनता है, नाइट्राइड रिटर्न है। और एजोइक एसिड से एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, वो फायर कर दूं तो एजाइड बनता है, एजाइड बनता है, दिस इज एजाइड। अब ये आपको पता चल गया कौन से आयन क्या है। तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एक चीज के चक्कर में बहुत सारा डिस्कशन हो गया हमारा, पर एनीवेज बताओ ये क्या हो गया बच्चों? MnO4 -1 या -2? -2 मैग्नेट, ये पर मैग्नेट MnO4 -1 या -2? minus डाइक्रोमेट Cr2O7 -1 या -2? minus CrO4 -2, एजाइड N3 -1 एंड नाइट्राइड N -3। अब हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान है। बताओ कितना चार्ज हो गया? 6 फैराड। एक मैग्नेट आयन के ऊपर, तो 1 मोल ऑफ मैग्नेट आयन पे इतना हो गया, 3 मोल पे इतना हो गया, तो इट इज 6 फेराडे हो गया। मैं सिर्फ मॉडुलस की बात करूंगा, नेगेटिव तो सबको ही पता है, MnO4 -1 तो नेगेटिव ही होता है, रिलेटिव चार्ज ही -1। इधर हो गया -1 E एब्सोल्यूट चार्ज। एक परमैग्नेट आयन पे इतना है, तो 1 मोल ऑफ परमैग्नेट आयन पे इतना होगा, और आपको पूछा है 5 मोल, तो ये हो गया 5 फेराडे ऑफ चार्ज। अगर साइन के साथ बोले तो -5 फेराडे, उसमें कोई डाउट नहीं है। डाइक्रोमेट -2E एब्सोल्यूट चार्ज हो गया, -2 रिलेटिव चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल का हो गया, मल्टीप्लाइड बाई Na करते ही अब 10 माइक्रोमोल, तो 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁶, मिलियन मतलब 10⁻+6 एंड माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ये मिलियन है। अगर कोई मिलियनायर है तो मतलब उसके पास 10 लाख रुपए हैं बेर मिनिमम। माइक्रो 10⁻⁻6, तो ये हो गया आपका 10⁻⁻5, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 फेराडे। बहुत सिंपल। डाइक्रोमेट का क्या हो जाएगा बच्चों? -2E, एक क्रोमेट आयन के ऊपर चार्ज है, 1 मोल ऑफ क्रोमेट आयन पे मल्टीप्लाइड बाई Na एंड 20 के ऊपर दिस इज, तो 60 फेराडे इज योर आंसर। व्हाट अबाउट दिस? -1E, 1 एजाइड आयन के ऊपर है, 1 मोल ऑफ एजाइड आयन पे ये है, और 10 मोल पे ये है, तो 10 फेराडे आपका वैल्यू हो जाएगा। 10 मोल ऑफ एजाइड, सर सेकंड में मिलीमोल था। सेकंड में मिलीमोल था, यस करेक्ट। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ हो जाएगा। परफेक्ट, थैंक फॉर करेक्शन, आई मिस्ड इट, मैं एम मिस कर गया पढ़ना। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ फेराडे इज मॉडुलस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ये हो गया। फोर्थ बताने एक बार। फोर्थ वाला 20 मोल्स ऑफ क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन होता है CrO4 -2। ये सबसे पहली चीज यू मस्ट नो। क्रोमेट आयन, जैसे कोई बोले क्रोमेट आयन CrO4 -1, कोई भी बोले एजाइड आयन N3 -1, कोई भी बोले डाइक्रोमेट Cr2O7, ये सब मगा हुआ होना चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर दैट। Logic has bigger role, but memory has definite a significant role while getting
while we are in the pursuit of getting good marks. CrO4 -2. तो देखो बच्चों, -2 डाइक्रोमेट, एक डाइक्रोमेट आयन पे रिलेटिव चार्ज है CrO4 -2 के ऊपर -2, एब्सोल्यूट चार्ज हो गया -2 मल्टीप्लाइड बाई E, और E की वैल्यू है 1.6 10 - 19 कूलम अप्रोक्सीमेटली, और 4.8 10 - 10 ESU। ये हो गया एक डाइक्रोमेट पे एब्सोल्यूट चार्ज, 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन पे इतना हो गया, और भाई 20 मोल पे इतना हो गया, 20 मोल ही पूछा है, ये हो गया -60 Na मल्टीप्लाइड बाई E को 1 फेराडे लिख सकते हो, तो मॉडुलस लेंगे तो 60 फेराडे आपका आंसर आ गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज 10 मोल्स ऑफ नाइट्राइड आयन। बताओ जल्दी से, वेरी सिंपल। -3E एक नाइट्राइड आयन का एब्सोल्यूट चार्ज, 1 मोल का मल्टीप्लाई कर दो Na, और 10 मोल का मल्टीप्लाई कर दो फर्दर 10, तो ये हो गया 30 फेराडे ऑन टेकिंग द मॉडुलस। राइट, सिंपल वन। होप यू अंडरस्टूड इट। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ आयन, कितने मोल ऑफ आयन, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव चार्ज आप लोगों ने बात की। अब देखो, एक लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ, आगे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ, इफ वी हैव डिस्कस प्लीज टेल मी ऑलरेडी, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in particular ion or atom or molecule। क्लोराइड आयन और फॉस्फेट आयन दोनों ही आयन है। क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन दोनों ही आयन है। ये मोनोएटॉमिक आयन है, और इसमें 4 ऑक्सीजन 1 फॉस्फोरस 5 एटम हो गए, इसमें 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 5। पेंटाएटॉमिक इन जनरल बोले 2 या 2 ज्यादा एटम हो तो पॉलीएटॉमिक आयन है। ये एसिडिक रेडिकल, ये बेसिक रेडिकल, ये भी एसिडिक रेडिकल, एनायन एसिडिक रेडिकल, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन है। देखो, आयन मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। व्हाट आई मीन टू से, एटम आयन मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल तो क्या होते हैं आपके, न्यूट्रल होते हैं, पक्की बात। तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन आयन में अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, और नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से। आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होते हैं। अब जहां तक न्यूट्रॉन कैलकुलेशन का सवाल है, तो ये मास नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलूं तो हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन नंबर है। एक और होता है, जरा ध्यान रखें, आइसोटोपिक नंबर। आइसोटोपिक नंबर एक और होता है A-2Z। तो न्यूट्रॉन नंबर होता है A-Z, आइसोटोपिक नंबर होता है A-2Z। इसको मैं अलग अंदाज में लिखता हूं एक बार, इफ यू एग्री। A-Z को लिख सकता हूं न्यूट्रॉन, और Z को लिख सकता हूं प्रोटॉन। तो आइसोटोपिक नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। ये आइसोटोपिक नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की दुनिया के टर्म्स हैं, बट हम इन जनरल यूज कर लेते हैं।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो जब हमें न्यूट्रॉन नंबर निकालने होंगे तो मास नंबर हमें पता होना चाहिए, और आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ये आइसोटोप्स है, इनका मास नंबर अलग अलग है, इसलिए न्यूट्रॉन नंबर भी अलग अलग है। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, तीन आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर सेम, आइसोटोप का मास नंबर अलग, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर भी अलग, प्रोटॉन नंबर सेम, सब में प्रोटॉन 8 8 8 है। न्यूट्रॉन यहाँ 16 माइनस 8, 8 न्यूट्रॉन हो गए, 17 माइनस 8 9 न्यूट्रॉन हो गए, और 18 माइनस 8 10 न्यूट्रॉन हो गए। तो आइसोटोप्स का मास नंबर अलग होता है, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या आइसोटोप्स में एक दूसरे के कंपैरिजन में पक्का अलग होती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट आइसोटोप्स। Number of neutrons are different in different isotopes. Number of neutrons are different in different isotopes. तो कौन, जब भी न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जाए किसी क्वेश्चन में, ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है उसके P1 में इस तरह के क्वेश्चंस हैं और पूछे जाते हैं, आगे हम यूज भी करेंगे, और मोल वाली चीजों से कोरिलेट कर देंगे इन सब चीजों को जो अभी पढ़ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में हम इन सबको यूज करेंगे। वी आर डिस्कसिंग वट एवर यू आर डिस्कसिंग। तो देखो, मैं आपको बोलूं कि मीथेन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो एक कार्बन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल लो, और हाइड्रोजन। ओवरऑल मीथेन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो आपस में बराबर नंबर में होंगे, नो डाउट अबाउट इट। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो पक्का बराबर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब देखो, कार्बन का कौन सा आइसोटोप ले, ये ले लेते हैं हाइड्रोजन का, ये जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप आप लोग बात करते हो। अब ये मैंने आइसोटोप क्यों मेंशन किया, ताकि न्यूट्रॉन निकाल सको, नहीं तो न्यूट्रॉन का नंबर नहीं निकाल पाओगे जब तक आइसोटोप नहीं बताऊंगा। इसमें प्रोटॉन हो गया 6, इलेक्ट्रॉन हो गया 6, न्यूट्रॉन भी हो गया 12 माइनस 6 6। इसमें आपके पास प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0 और इलेक्ट्रॉन भी 1। इतना आप लोग जानते हैं। तो देखो प्रोटॉन कितने हो गए भाई साहब, एक कार्बन में 6 प्रोटॉन हो गए, एक ही कार्बन है। 4 हाइड्रोजन में 4 प्रोटॉन हो गए, 6 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 4 कार्बन, तो ये हो गया 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप बिंदास लिख दोगे 10, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा। एक कार्बन में 6 न्यूट्रॉन है और हाइड्रोजन में 0 है, तो एक कार्बन में 6 हो गए और 4 हाइड्रोजन में 0 हो गए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हो गए आपके। एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये आइसोटोप्स मुझे मेंशन करने पड़ेंगे क्वेश्चन देते टाइम, अगर मैं न्यूट्रॉन का नंबर भी पूछता हूं। अदरवाइज एटॉमिक नंबर ही काफी है, वो तो वैसे ही ध्यान रहता है छोटे छोटे एलिमेंट्स का। तो आपको डन। अब मेरा क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ electrons, protons and neutrons in first 1 sulfate ion, second 1 phosphate ion, third 1 mole of azoic acid, एक मॉलिक्यूल ले लो, एक आयन और एक मॉलिक्यूल, जितने भी आयन जितने मॉलिक्यूल का फर्दर निकालना होगा तो वो तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर्ड गैस होती है, जस्ट जीके, ब्राउन कलर्ड गैस। ये जो आप स्मोक सुनते हैं ना, दिल्ली में स्मोक हो गया, स्मोक प्लस फोग इज स्मोक, है ना, स्मोक प्लस फोग इज स्मोक, बहुत न्यूज़पेपर में चलता है।
दिल्ली वाले एनसीआर वाले लोगों को मास्क लगाने की आदत स्मोक ने ही डाली थी, बिकॉज ऑफ वेरी पोल्यूटेड एयर ड्यू टू स्मोक। और ये स्मोक वाला जो पार्ट का कंट्रीब्यूशन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि इसमें हरियाणा और पंजाब का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ के किसान पराली जलाते हैं, बट हमारे इलाके का नहीं है, हमने कभी भी पराली जलाते हुए नहीं देखा लोगों को। स्मोक एंड फोक। NO2 ब्राउन कलर्ड गैस है। ये स्मोक में एक फोटोकेमिकल स्मोक होता है जो दोपहर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे स्मोक होती है, फोटोकेमिकल स्मोक आती है ज्यादा हाई टेम्परेचर पर रिलेटिवली। एक क्लासिकल स्मोक होती है, जस्ट जीके की तरह मैं बता रहा हूं आपको, आप बाद में कभी पूछा भी जा सकता है आपको। तो इसमें NO2 होती है, और उस होती है तो ब्राउन कलर्ड होती है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर्ड क्लाउड टाइप दिखाई देते हैं ऊपर, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर हमारी गाड़ी वाड़ी चलती है उसके ऊपर। दिस इज ड्यू टू NO2 होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं स्मोक में, फोटोकेमिकल स्मोक में स्पेशली, और वो ब्राउन कलर्ड। NO2 इज ब्राउन कलर्ड गैस, ये बहुत बार यूज होती है। और क्लोरीन है ना, क्लोरीन बड़ा सुंदर सा कलर बोला जाता है इसके लिए, पैरेट ग्रीन कलर। इसका ग्रीन तो ग्रीन में थोड़ा येलोइश लगा दें तो पैरेट ग्रीन हो गया ना, पैरेट ग्रीन कलर और येलोइश ग्रीन कलर। क्लोरीन इज पैरेट ग्रीन कलर्ड गैस, जस्ट एक जीके की तरह याद रखिए, बहुत ही फेमस गैसेस हैं, बहुत ही फेमस गैसेस हैं। NO2 में आप लोग निकालें। अब मैं इन सब का आइसोटोप बताऊंगा, कौन सा आइसोटोप आपको लेना है, कौन सा आइसोटोप लेना है। लेट अस फिनिश आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन। कौन सा आइसोटोप आपको लेना है? सल्फर का 31 वाला आइसोटोप ले लें, फोस्फोरस का 31 वाला आइसोटोप ले लें, और ऑक्सीजन का तो कॉमन वाला आइसोटोप जो आपको मिलता है 16 वाला ले लें न्यूट्रॉन निकालने के लिए। नाइट्रोजन का 14 वाला ले लें, बस यही एलिमेंट आपको चाहिए। हाइड्रोजन का प्रोटियम वाला ले लें, बाकी चाहिए नहीं आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी। तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं फोस्फेट आयन में, तो सल्फर में एक में 16 प्रोटॉन हो गए, ऑक्सीजन में आपके 8 प्रोटॉन हो गए, तो 48 प्रोटॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन में तुरंत प्रोटॉन +2 बोल दूंगा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी -2 चार्ज है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो 50 हो गए। न्यूट्रॉन अगर मैं देखूं तो 32 - 16 इसमें न्यूट्रॉन 16 हो गए, 31 - 15 इसमें न्यूट्रॉन 17 हो गए, इसमें न्यूट्रॉन 8 हो गए, इसमें 14 - 7 इसमें न्यूट्रॉन 7 हो गए, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो गई एक एटम में। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए सल्फर में? 16, एक सल्फर है, और 4 ऑक्सीजन है, तो वो हो गए 48, ये न्यूट्रॉन। फोस्फेट की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन कितने हो गए? 15, एक फोस्फोरस है, और 4 ऑक्सीजन में 32, दैट इज 47। इलेक्ट्रॉन पक्का प्रोटॉन +3 हो जाएंगे क्योंकि -3 चार्ज है, तो 50 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन 50 एंड 50 है, तो हम बोलेंगे ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब जैसे आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में आइसो क्या होता है? सेम क्या होता है? प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसो मतलब सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक पर्टेनिंग टू इलेक्ट्रॉन, आइसो मतलब सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेम और टर्म इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद ही डेफिनेशन अपने अंदर छुपा के बैठी है। मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस लेक्चर गाइज एंड गर्ल्स, वी आर अबाउट टू फिनिश। Let us give the finishing touch to today's lecture by completing remaining 2 questions and part of this question, neutron calculation. तो इसमें कितने न्यूट्रॉन हो गए? 17 हो गए प्रोटॉन फोस्फोरस में। अच्छा जी, एक फोस्फोरस है। ऑक्सीजन में कितने हो गए? 8। तो 32 + 17, 32 + 17 49। एजोइक एसिड में अगर हम बात करें तो प्रोटॉन कितने हो गए? 3 नाइट्रोजन है 21, एक हाइड्रोजन है, तो 22 हो गए टोटल।
इलेक्ट्रॉन सोचना ही नहीं, 22 न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन की बात करूं तो 3 नाइट्रोजन में तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21, और एक हाइड्रोजन में 0 है क्योंकि प्रोटियम है, तो ये 21 हो गया। मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर्ड गैस की बात करूं तो प्रोटॉन एक नाइट्रोजन में 7 है, 2 ऑक्सीजन में 8 है, तो 16 23 हो गया। इलेक्ट्रॉन भी 23 है, आंखें बंद करके लिख देंगे बिकॉज न्यूट्रल है। लास्ट में न्यूट्रॉन की बात करें, वो भी एक नाइट्रोजन में 7 है, 2 ऑक्सीजन में 16 है, तो ये भी 23 हो गए। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट। अब तो मैंने एक सिंपल सी सिचुएशन दी, लेकिन क्वेश्चन में आपको आएगा बताओ इतने मिलीमोल में इतने, अब मोल मिलीमोल माइक्रोमोल वो सब दे देंगे उतने। मैं तो एक एक आयन में एक आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट की है। जब बहुत सारे आयन होंगे, कुछ मोल होंगे, बोलेंगे इतना ग्राम ऑफ सल्फेट आयन, तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक दैट। वो सब आपको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पर पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना आना चाहिए। यस प्लीज। सर सेकंड पार्ट पेज नंबर 6 48 आएंगे। पेज नंबर 6 के ऊपर कुछ पूछना। हाँ, व्हाट आर यू सेइंग, एनीवन प्लीज? सेकंड पार्ट पेज नंबर 48 आएंगे। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट। न्यूट्रॉन अच्छा, 48 सेकंड पार्ट में फोस्फेट में क्या बोल रहे हैं? फोस्फेट। 48 आएंगे। फॉस्फेट में न्यूट्रॉन 16 आएंगे। फोस्फेट में न्यूट्रॉन 48 आएंगे। अच्छा, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? 17 आएंगे। इसमें 16 16 होंगे होंगे सर। फॉस्फोरस में 16 न्यूट्रॉन फॉस्फोरस में आएंगे। 16 आएंगे। करेक्ट, 17 लिख दिया, 16 है। थैंक्स फॉर करेक्शन। सर एक बार पेज नंबर 7 और पेज नंबर 7 या 6? 7 यस, want to ask something on this page? नो सर वो लिखा नहीं। ओके, चलो ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। भारत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।